Hello guys, assalamu alaikum. I hope that you all are fine. So, welcome to Mashuk's Language Academy. So, today we will learn about the tense. First of all, uh, tense there are three major tenses in English: present indefinite tense, and past indefinite tense, and future indefinite tense. So, today we will learn about the present indefinite tense and its usage, where it is used. So, today we will learn about present indefinite tense. First of all, present indefinite tense, the definition of this tense is this tense shows that a subject does work present time. It is called present simple tense. It means whatever we are happening in our present time, it is called present simple tense. And there are two helping verbs of this tense. There are two helping verbs of this tense: do and does. Do and does. Do use with plural subjects. For example, I, we, you, they, and to name. To name. Two names we use do. And does use with singular subjects. For example, he, she, it, and one name, means singular one name. We use does with that. Use of present indefinite tense. Use of present indefinite tense, there are six usage of present indefinite tense. Today we learn. So first one is present indefinite is used to give the introduction of a long essay or to have a discussion in a paragraph. For example, education plays a vital role in our life. Education plays a vital role in our life. This one is a wonderful usage. The first one is usage of this tense. The second one is the second. The second one is it is used for actions that happen regularly or on daily basis. It means जो भी हमारा काम जो भी एक्शन होता है रेगुलरली, जो डेली बेसिस पे जो एक्शन होता है, जो फॉर एग्जांपल पर्सन कोई करता है या ऑर्गेनाइजेशन कंट्री या नेशन में, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही किया करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से माई प्रेयर. Teacher attends class at 8 a.m. sharp. This is a second uh, use of the present indefinite tense. The third one is it is used for a future timetable and a schedule which organizations already decides our plans. For example, academic or calendar. It means the organization जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो हम एक पहले से डिसाइड कर लेते, तो वो सारा कुछ हम क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट में ही रहते हैं. एडमिशंस ओपन इन एडमिशन ओपन इन अप्रैल. दिस इज़ अ फ्यूचर टाइम टेबल. ये जो है ना, ये फ्यूचर का टाइम टेबल है. तो हम इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं अभी अभी जैसे कि अभी अप्रैल आने वाला है, तो इसमें सारे स्कूल्स वगैरह जो है ना वो एडमिशन के लिए जो है ना एडवर्टाइज वगैरह करेंगे, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाएंगे. तो वो ऐसे इस तरीके के जुमले जो ना इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं. तो हमारे जो फोर्थ नंबर का है, द फोर्थ नंबर, it is used for quotations. For example, Qaeda-e-Azam says unity, faith and discipline. Fifth number, it is used to express universal truth. ये यूनिवर्सल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सिक्स्थ, द फाइनल, it is used to write the headlines of English newspapers.
आप डॉन न्यूज़पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि हेडलाइंस जो भी होती है वो सारी सारी हेडलाइंस आप देखेंगे वो प्रेजेंट सिंपल में ही होती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती हैं, ये आप वाजे रख लें, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पीएम विजिट्स चाइना, जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट चाइना कर रहे हैं और नीचे एक पैराग्राफ लिखा होता है, एक आर्टिकल लिखा होता है, तो उसमें हम ऊपर से जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही होती है। तो हम आगे चलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, ये याद रखें, पॉजिटिव और अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब एस और es प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही राइट्स एन essay, आई प्ले अ गेम। सो आप देखें यहाँ पर जो राइट से राइट के साथ एस का इजाफा हुआ है, तो एस का मतलब है, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डज, जिस भी सब्जेक्ट के साथ डज इस्तेमाल होता है ना, उसके साथ अगर पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस जो भी बनाएंगे तो उसके साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ये याद रख लें। और जिसके साथ डू इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, आई प्ले अ गेम, आई के साथ कोई भी एस का इजाफा वर्ब में नहीं हुआ, तो ये याद रख लें। जो जिसके साथ हेल्पिंग और डू इस्तेमाल हो किया जाता है तो वो उन सब्जेक्टों के साथ एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल हुआ था, जिसके साथ डज का इस्तेमाल होता है, उसके साथ हमेशा हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ये याद रख लें, ये याद रख लें, ये याद रखें। तो हम आगे चलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस जो इसका है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डज नॉट रीड द बुक। अब देखिए यहाँ पर रीड के साथ मेन वर्ब के साथ जो है ना वो एस और ई एस का इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इजाफा कर लिया, ये देखें ई एस का, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मेन वर्ब के साथ भी इजाफा कर लें। अगर मेन वर्ब के साथ इजाफा करेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, याद रख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इंट्रोगेटिव जो भी होता है उसके साथ पहले हमेशा पहले वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, पहले हमेशा एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डज शी पास द एग्जाम्स। देखिए यहाँ पर डज जो है ना वो पहले लगा हुआ है, तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले जो है ना हमें हमेशा हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हम दूसरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। देखें जो फाइनल है इसका वो है रिलेटिव सेंटेंसेस। रिलेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ WH, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, etc। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और जुमले बच्चों को कैसे बनाने चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने लिख दिया है, और एक जुमला भी दे दिया है कि वो कैसे बना सकते हैं अपने जो ना इंट्रोगेटिव WH जो होते हैं सेंटेंस प्रेजेंस इंडेफिनिट में। WH प्लस में हेल्पिंग वर्ब डू डज और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा था किस तरीके से हम जो है ना जुमला बना सकते हैं इसका। वाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर डू लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब पुट किया है। वाई डू दे स्टडी टेंसेस, हम स्टडी, वाई डू दे स्टडी टेंसेस, ये याद रख लें। स्टडी जो टेंसेस होता है वो हम हमेशा देखें WH से बाद में हम जो ना एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल
कर रहे हैं, ये याद रखें। हम एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका एक और भी आपको थोड़ा मैं बता दूं कि यहाँ पर एक और भी पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एडवर्ब्स जो होते हैं ना, एडवर्ब्स आपके जो एडवर्ब्स होते हैं याद रखें। एडवर्ब्स जो होते हैं वो यूज्ड किए जाते हैं किस में? यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ना याद रख लें, हम जो ना वो एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से एडवर्ब्स हो सकते हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए वो आपका जो ना यूजुअली आप हो सकता है आपका यूजुअली आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूजुअली, जैसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली। और आप ऑफन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली। ये सारे जो भी है ना, ये जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, ये आप सारे जो भी एडवर्ब्स हैं ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। ये याद रख लें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेसिव और भी इंग्लिश के बारे में सीखना है तो प्लीज़ subscribe my YouTube channel Master's Language Academy. I hope that you are understood. So thank you so much for watching this video.